मन करता है शाउटवा ई कन्या पे डाउटवा, और बहुत देयर सो मच फ्लेवर इन इट। पहले हम टिपिकल कैरेक्टर्स के लिए गाने बनाते थे जी, अब हम सिर्फ हीरोज के लिए गाने बनाते हैं, तो बच्चे एक्चुअली हमारी पिक्चर का हिस्सा होते ही नहीं है। बिकॉज यू मेकिंग 25 डिफरेंट लव सॉन्ग्स फॉर द सेम रिलेशनशिप। We need the children's perspective back. गुड न्यूज़ में मैंने ना एक गाना किया था जीजा, जो एक गीता का सैंपल सीडी आया था। आप बिलीव नहीं करोगे वो गिद्दे अभी टुमारोलैंड में बज रहे हैं या सनबर्न में बज रहे हैं, तो सैंपल तो हर तरीके से यूज़ हो रहा है। Someone like AP Dhillon has bought an entire beat. The issues are of niyat. Sometimes underplaying my strength will make the song sound better. वर्ड्स पोइट्री नहीं होते, थॉट पोइट्री होता है। कंपोजर को कंपोज करते समय कभी कभी हुक्स एक हुक वर्ड आ जाता है, और वो हुक वर्ड जो है वो गले का फंदा भी बन सकता है। तो इरशाद कामिल ऐसे कैसे लिख सकता है? इरशाद कामिल तो ये, अरे इरशाद कामिल हमेशा ही कबीर के दोहे थोड़े लिखेगा यार। मैं लेबल्स के साथ काम करता हूँ ना, तो वो लोग मुझे एग्जांपल देते हैं, यू नो सजनी गाना देखो ट्रेंड कर रहा है, कैन वी मेक अ सॉन्ग लाइक दैट? There are times that I've recorded with a cold and then Pritam is like, I want that tone. बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो लफ्ज़ों का हक अदा नहीं करते। बहुत सिंगर्स का ज़मीर टूट रहा है। कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो 10-15 साल से गा रहे हैं, क्योंकि वो आ रहे हैं और गा रहे हैं, और किसी का फाइनल हो जाता है जब सबको स्टूडियो में पता है कि उन्होंने एक्चुअली बेहतरीन गाया है। हम लोग जीवनमुखी बोलते हैं, जीवनमुखी मतलब रियल लाइफ की जो भी चीज़ें होती है ना, हम लोग वो टॉपिक लेके गाना बनाते थे। स्ट्रेस हुआ या ब्रेकअप हुआ, वो मुझे बॉम्बे में नहीं मिलता है। इंडिपेंडेंट खासकर आर्टिस्ट को कि आप फिल्मों के साथ compete नहीं कर सकते। जी, आप ईमानदारी से जो आप कहना चाहते हैं, जो आपकी बात है, अपनी बात है, वो कहिए, अपने तरीके से कहिए। आपको सुनने वाले लोग हैं, फैलाती हैं जड़ें घर की नींव तक, कभी कभी हवा के झोंके से गिराती हैं बेर, सभी घर वालों को कहाँ पसंद आते हैं पिछवाड़े की बेरी के बेर। Hello and welcome to CNN News 18 Music Stars Roundtable. I am Vishal Chatkara. Music is as important in a film as the visuals are. It makes you laugh, cry, mold your emotions and memories of the film. That's what the year 2024 will be remembered for, when Irshad Kamil pierced everyone's heart with the song Mainu Vida Karo from Chamkila. Ram Sampat tunes gave emotional depth to Sparsh Srivastava's character as he searches for his missing bride, Fool, and the song O Sajni Re evokes emotions of love and longing in everyone's heart. Tanish Bakshi, the modern day master, got the whole nation groove to Teri Baaton Mein Aisa Ulja Jiya, and then raised the bar when he recreated another chartbuster with the title song of Bhool Bhulaiya 3. And the chartbuster queen, the velvet voice Shilpa Rao, on the pole position as she started the year with Ishq Jaisa Kuch from Fighter, Mere Mehboob from Vidya Ka Wo Wala Video, and ending the year with Tumhare Hi Rahenge Hum from Sri 2. Irshad Kamil, Shilpa Rao, Tanish Bakshi, Ram Sampat, welcome to CNN News 18 Music Stars Roundtable. थैंक यू। You know, I want to start with an easy question. What was the most creatively rewarding moment for each one of you this year for your music? दैट सिटिंग, जो म्यूजिकल सिटिंग होती है, पर सडनली आपको पता चलता है कि वो मैजिकल हो जाती है। वो विदा करो की सिटिंग थी, एक सिटिंग में ही गाना आया था। रहमान साहब पियानो पे थे, मैं था और इम्तियाज़ थे, एंड इट वाज अराउंड 2:33 इन द नाइट, एंड वी आर ट्राइंग टू क्रैक के क्या हो, किस तरह से हो, एंड दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज द सिटिंग फॉर मी। Shilpa? This year started off with all my songs getting bounced actually. Yeah. 8 to be exact. Okay. So that's that. That was rewarding. It is, because at least you know that at least you're trying something and you're trying something new, and sometimes it just doesn't land. It makes your resolve as a musician even more, because now this also doesn't matter. You will again go back to the studio the next day and again sing. What was the most shining moment then, if this year? Well, we had a great time singing Chuttamalle for Devara. That was like those 2 days we had such a great time at Anirudh's studio with all the boys, and yeah, it because we're trying to form the song. I think that was a great time when the song forms. राइट। So yeah, those are those shining moments. Yeah. Tanish? Sure. मेरा तो मुझे खुद ही पता नहीं है कब है, मतलब
मेरे लिए हर गाना मेरे लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट है। उसमें What do एक you गाना think? है जो मैं फिल्म में था नहीं गाना, मैं एक ही गाना कर रहा था फिल्म में, एंड मैं राजस्थानी फोक लेके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मतलब आई वाज ट्राइंग टू रीमिक्स फोक। सो एक रिहाना का गाना था, एक क्लीन बोल का आर्टिस्ट है जिसने इसको रीमिक्स किया था, तो उसका ग्रूव मुझे बहुत पसंद था और थोड़ा वेस्टर्न था, तो मैंने लाल पीली अखियाँ जो गाना था और राजस्थानी फोक लेके उसके साथ थोड़ा मिक्स किया, तो एक साउंड क्रिएट हुआ। तो मुझे लगा नहीं कोई प्रोड्यूसर लेगा, तो मैंने दीनू को वो सुनाया एंड उसने गाना ले लिया एंड वो आई थिंक नेक्स्ट 2 दिन में शूट हो गया। तो मुझे पता नहीं वो कैसे प्रोसेस इतना जल्दी हो गया, तो वो मेरे लिए बहुत क्रिएटिव था कि मुझे लगा कि मैं ना अलाइन हो गया हूँ थोड़ा, क्योंकि एवरी प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी कोई नया फिल्म आता है ना, मुझे वो डर रहता है कि गाना शायद पसंद नहीं आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा ड्रॉप हो जाता है, हर बार होता है ये। इतना गाना देने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं गाना रिजेक्ट हो जाएगा, गाना नहीं चलने वाला। At this stage also, after spending so many years. I'm still afraid नहीं, going it to a is there, recording. it is there every Yeah. time and I try to tell myself नहीं तनिष तेरे गाने हिट होते हैं, ये हो जाएगा, फिर भी नहीं होता। बट एक जो स्पार्क होता है ना, अगर डायरेक्टर ने बोल दिया "Fuck, क्या गाना यार, क्या गाना", तो मुझे ना वो बूस्ट मिल जाता है। तो ये गाना वैसे ही था मेरे लिए। Ram sir? So I think this year has been special because I mean I don't work like most composers right now in the Hindi film industry work. I tend to work on the whole film. So I think the process of Lapata Ladies itself was really special because it's very rare that you get producers and a team who protect you. You know what I mean? Like you feel like they've got your back and you've got the best intentions. Everyone's pushing in the same direction. Right. So yeah, and you're working on a film for years. If you're doing the song and the score, it's a process that takes forever. But the beautiful part of this is actually the fact that my director Kiran Rao herself is a pretty good musician. So yeah, she's probably a better piano player than I am. Wow. So it's a very healthy conversation, a lot of putting together of sounds and ideas. But with Sajni, there was a very unique thing about how the song came about. Actually, it was the last song that we made for the film. And that scene with Sparsh and Nitanshi, Yeah. with Pool and Deepak, was constantly in and out of the film. It was the most astonishing thing because wo edit se nikalte gaya. Because we felt that, at somewhere the problem was when during the screenings, we felt that the pace was dropping, something was happening, it was not working. And then I remember having this conversation with Kiran, where Kiran one day called me and she said, I need to come and meet you right now. I said, Bilkul aa jao, why not? We'll sit and talk about this. And actually that's the best thing a director can do for you, is to make the time to come and sit and talk to you. So we were sitting and she said, actually what nobody is getting is that this is actually the heart of the film. The relationship between Pool and Deepak, actually we've not seen them spend any time together except when they're traveling in the opening of the film. Why does he love her so much? So much, yeah. Why is he yeah, pining for her? Yeah. That we have to crack that. And we didn't talk about a song, we didn't talk about anything. And she left and Sajni just came. The whole song just came to me, and it was such an odd situation because one of my closest friends in the industry, who's a very acclaimed writer, was on the project, and then he had bad health. So he had to get off the project. So we were I'm not going to take names, but we were in a state of limbo with lyrics, So instead of making it into a problem, I thought this was an opportunity to be able to work with somebody fresh and new. And Prashant is somebody I know from Instagram, actually. I know him from social media. And he had sent me a lot of stuff. He writes very nicely in Braj and Khariboli. And he writes very simple, and he writes, for that, he literally writes lyrics from that land, So I felt that it was the right fit. And I sent it to him, and he was in office. At that point, I think he was working in Accenture. So he said, okay, I'll figure it out and get back to you. And he wrote something and he sent it back to me. Oh, cool. And it was, I think I started at about 2 o'clock, and I think the song was done by around 8 o'clock at night. Wow. The whole song was done. And I sent the first draft of it in my voice to Kiran and Amir. And I got feedback from. So those are the kind of rewarding days. But I tell you, the most rewarding day I've had this year is on a project that Irshad Bhai and I worked on. No, Irshad is okay. No, it's fine. So we were working on this, we are working on this film, and there's a song that he's written called Bhoolna,
And the melody of that came to me when the director was telling me the scene on the phone. Wow. It was the strangest moment I've experienced in a long time. Again, this only happens because everybody trusts each other so much. And he told me the scenario and he said, this is what I'm missing and I'm feeling this and this is not happening. And I don't know what happened, but I sang the melody to him pretty much on the same call. Like it came to me while we were talking. So that was a freaky moment. And hopefully the song will come out in 2025. But when it comes out, you'll understand just how brilliant this man is. Oh. And you know how these conversations are actually where music is made. Yeah. Film music is made. Outside of that, I mean, there are many avenues in which you make music. But in film music, when the team sits together, in fact, I genuinely feel like, you know, one of the things I'd love to hear from you is I keep telling people we're not in the talent industry, we're in the resilience industry. You know, it's just about resilience. You have to be able to take the failures because every day is a failure. 3 times a year, if you're very lucky, you succeed. You know? Let's talk about the poetry of Bollywood music. You know, you used a word called "Hu Mat Mela Main." You used a word called "O Sajni." You know, these words like Sajna, Balam, Pia mostly belong to the music of 90s. Do you look for these unusual words? मैं ना frankly believe ही नहीं करता वर्ड्स में. वर्ड्स पोइट्री नहीं होते, थॉट पोइट्री होता है. Yeah. True. अगर थॉट नहीं है तो आप जितने मर्जी चमकीले वर्ड्स रख दीजिए वहाँ पे, वो नहीं अच्छे लगेंगे. इट्स थॉट व्हाट यू आर सेइंग एंड हाउ यू आर सेइंग. अब मुझे कोई वर्ड आतिश फिशां, मुझे कहीं से पढ़ लिया मैंने और मतलब भी ढूंढ लिया. एक होता है वर्ड का मतलब जानना, एक होता है वर्ड का यूसेज जानना. ये 2 अलग बातें हैं. मैं जब भी अप्रोच करता हूँ किसी गाने को या किसी कंपोजिशन को, मैं फ्रैंकली उस कंपोजिशन का फील पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि ये कह क्या रही है यार. और एक इंसान ने इस चीज़ पे मेहनत की है, मुझे उसकी मेहनत को नीचे नहीं गिरने देना है. मैं उसमें क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ, दैट इज़ द ओनली थिंग. और वो फील थोड़ा सा इन्हांस होके उस इंसान तक पहुँचे जिसको मैंने, क्योंकि वो मेरा पहला लिसनर है. Right. म्यूजिक डायरेक्टर इज़ माई फर्स्ट लिसनर. तो अगर उस तक एनहांस होके फील नहीं पहुंचा तो इट मीन्स इट्स माई फेलियर. और वो मैंने ये शहजादे वर्ड इस्तेमाल करना है, आतिश फिशां करना है, तवक्को करना है, तवज्जो करना है, आई डोंट केयर. बिकॉज वो आपके साथ रहते नहीं हैं. शब्द नहीं रहते, फील रहता है. इस आदमी के साथ रह के मुझे अच्छा लगा था. अब आपको वो सारी बातें थोड़े याद है क्या क्या की थी. You remember the feeling, yeah. नहीं, इस आदमी की तो मुझे शक्ल ही पसंद नहीं है यार. अब उसने कब क्या कहा था या नहीं कहा था आपको नहीं ध्यान में रहता, पर मुझे अच्छा नहीं लगा था इसके साथ बैठ. सो आई बिलीव फील इज द पोएट्री, words are mere tools. Like for example, one of the things I find really interesting about working with Irshad is this conversation about, is the person an introvert or an extrovert? Character कौन है, कौन गाना गा रहा है, वो कितना क्रूशल हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कमिंग बैक टू लापता, हर कैरेक्टर का जो रंग है वो गाने में हमने उतारने की कोशिश की है. कि वो जो है, जो 2 लाइंस हैं वो राइटर ने लिखे थे, दिव्या निधि ने लिखे थे. वो जब ही वाज राइटिंग द डायलॉग्स तब उसने पेज के ऊपर लिख दिया था ये 2 लाइन, मन करता है शाउटवा, ई कन्या पे डाउटवा. और बहुत देयर सो मच फ्लेवर इन इट, देयर सो मच फन इन But अभी इट. छोटे शहरों में भी ये तो इंग्लिश तो है ही. I think every song is also a reflection of the society and the way we talk. Exactly. So the closer that we are to society, that's your song. So that's why और he wrote that. इवन द लैंग्वेज उस तरीके में, उस जगह पे जो हम सारियां शॉपां तो बंद होगी, अब शॉपां कहाँ का वर्ड. तनिष्क आता लंबियां रे. इट्स लंबियां, देयर इज नो वर्ड लंबियां रे, इट्स लंबियां, राइट. एक्चुअली ना उसमें कॉन्सेप्ट क्या था, मैं जब भी गाना करता हूँ ना तो मैं एक फोनेटिक्स ढूंढता हूँ जिससे मैं वाइब कर पाऊँ, क्योंकि मैं राइटर हूँ नहीं, लेकिन थॉट मेरे अंदर चलता रहता है कि ये कॉन्सेप्ट को कैसे मैं सिंपल वर्ड्स में कर पाऊँ. तो इरशाद भाई के साथ भी मैंने बहुत सारे काम ये साल में किए हैं जहाँ पे इरशाद भाई
ये तो बहुत ओपन है, मतलब ये इनके साथ मेरा ना एक ब्रदरली बॉन्ड है। मेरा लाइफ जो करियर गया है वो एक एक करके स्टेप्स हुआ है। कभी मैंने पूरा सोलो फिल्म किया नहीं है, लेकिन हर फिल्म में एक पार्ट किया है, तो वो मेरे लिए ना एक इंस्टीट्यूशन हो गया। मुझे समझ में आ गया कि ये राता लंबे रोमांटिक सॉन्ग का ये जॉनर है और ये वर्ड इसमें फिट हो जाता है। लिरिक्स भी ना मैं इनसे ही मुझे समझ में आया कि एवरी टाइम ना इज़ नॉट द फोनेटिक्स, जो मैं फोनेटिक्स यूज़ करता था वैसा आई हैव टू बी ओपन अबाउट द थॉट, कि अगर वो लाइन में कुछ और ई में ख़त्म होता है कि आ में ख़त्म होता है, बट देर इज़ द कॉन्सेप्ट देयर जो पहुंचता है, तो आई थिंक इट गोज़ वेल विद द सॉन्ग। So then, how many songs in a year you compose, you write, you sing? मुझे नहीं पता यार, मैं ऐसे तो आपको लगता है जो मैं एक गाना लिखता हूँ क्या एक ही बार लिखता हूँ? अब अगर उसको वो सारी लिखने को भी गिना Draft, जाए, सारे ड्राफ्ट्स सारे ड्राफ्ट्स को भी गिना जाए तो मैं कितने गाने लिखता हूँ? मैं तो मतलब जितने रिलीज होते हैं ऑलमोस्ट उनके बराबर ही गाने लिख देता हूँ। तो फिर चमकीला के कितने ड्राफ्ट लिखे थे? इट्स नॉट अबाउट ड्राफ्टिंग और इट्स बेसिकली व्हाई यू आर राइटिंग ड्राफ्ट। दो ही चीज़ें होती हैं, आइदर ये मैं बहुत मानता हूँ, कई बार क्या होता है और बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टर भी उतना क्लियर नहीं होता उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। यस 100%। और ये म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट के सामने ये दिक्कत पेश आती है। ये इन सबके साथ मैंने काम किया है और सारे मेरे अपने अच्छे दोस्त हैं, ये हमने फेस किया है बहुत सारी बार कि ओके ये ट्राई करके देखते हैं। अब आप उधर गए तो आपको ये समझ में आता है ओ एक्चुअली ये तो अपने को चाहिए ही नहीं था यार। जैसे सजनी गाने की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि एक कन्फ्यूजन चल रहा था, अगर पहले ही डायरेक्टर क्लियर होती कि देखिए भाई यहाँ पे गाना आएगा और हम ये चीज़ अंडरलाइन करेंगे इस गाने में, और वो बड़ी जायज़ बात है। आपको हर वक्त 100 की 100 चीज़ें पता हो, 100% पता हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप प्रोसेस के दौरान क्या सीखेंगे अगर सब कुछ पहले ही पता है आपको? कोई तो जगह खाली छोड़नी पड़ेगी ना, जो बाद में आके भरेंगे हम। बिल्कुल वही लर्निंग है। ये ड्राफ्टिंग जो होती है, हम बेसिकली नेविगेट कर रहे होते हैं कि उस जगह पे जाना है, रास्ता हमें पता नहीं है। एक शहर में जाना है जिस शहर का कोई नाम नहीं है, क्योंकि कोई नाम नहीं है इसलिए कोई उसका रास्ता भी नहीं है, लेकिन जाना है। तो मिल मिला के सब पहुंच जाते हैं। कभी ये बोलते हैं बतौर म्यूजिक डायरेक्टर, इस में ऐसे नहीं है, ऐसे चल के देखें, या मैं बोलता हूँ कि यार ये थॉट कैसा लगता है, ऐसे पकड़ते हैं इस बात को, या डायरेक्टर की तरफ से बात आती है। सो इट्स ऑर्गेनिक। जितना ज़्यादा प्रोसेस होता है उतना ज़्यादा वो अच्छा भी होता है, मीठा भी होता है, और मुझे लगता है उसकी लॉन्जिविटी भी उस हिसाब से ज़्यादा होती है चीज़ों को लेके, और आपका रिलेशन उस चीज़ के साथ बहुत बनता है। It seems as if it's quite an easy place because everything is given to you. Most of the times the track's also made, everything is written, everything is composed, everything. But then it also creates एक वो ना ख्याल वाली बात आ जाती है। कोई भी राग को आप एक्सप्रेस करें ना, तो ख्याल फॉर्म में आपकी जो अपनी थॉट्स हैं उस राग को लेके उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। बट उसमें एक पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं बंदिश। दिस इज़ योर बंदिश which is constant, and then there's one thread and you have to keep going round. You can do a perfect circle, you can do this, you can do anything, but both are necessary. Sometimes underplaying my strength will make the song sound better. तो गाना गाने के बाद हम उसमें से हम निकाल देते हैं कि अच्छा ये हरकत निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो. Like for example, for Besharam Rang, there's only one harakat which I did at the very end. What was that? नशा चढ़ा, ये ज़रूरत नहीं था, बट वो एक जगह पे बिकॉज द सॉन्ग इज गोइंग इन क्रिशेंडो, वहाँ पर वो अच्छा लग गया. सो Sid, Vishal Shekhar, Kumar Bhai, me, we all like, no, this is good. But this is not necessary for everywhere to sing it. Okay. So keeping it as simple and making the song sound like a hero, that is what all of us try to do. Be it the lyricist, be it the composer, be it the singer. It takes a lot of energy from you emotionally. You leave a lot of your fragments in the song, and I think for us, we look at it like that. We don't look at numbers. We only remember that feeling that in that song, when I'm singing it, that is what I felt when I sang it, and that is the amount of heart
I put into that song, and that's about it. And then you can't do anything about it. उसके बाद लोगों का हो जाता है वो. But then the only thing we remember of the song is that what I felt singing it. That's about it. ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बहुत गाने बनाता हूँ, हर दिन उठ के कुछ ना कुछ करता ही हूँ, चाहे रिकॉर्ड कर लूँ नोट में, बट 50 गाने में ना जब मैं बाद में सुनता हूँ तब मुझे खुद ही पसंद नहीं आता है. कभी कभी ऐसा भी होता है जब डायरेक्टर ने मुझे एक थॉट दिया और तभी हम लोग ने कंपोज कर लिया, तभी के तभी, और वो अप्रूव भी हो गया. तो मेरा यही कहना है कि मैं बैंक ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरा एक ट्रेनिंग प्रोसेस रहता है. 10 गाना बनाऊंगा ना तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स में एक मास्टर गाने में लगा सकता हूँ. तो मेरा यू नो यू गेटिंग इट ना, दैट्स द प्रोसेस आई फॉलो. तो बस यही है स्टोरी क्रिएटिविटी. No, he's absolutely right. Actually, it's you live music, so I'm making songs all the time. I don't really recall worrying about what other people think so much, because I was never a completely Bollywood or a completely Hindi film based composer. मैं advertising में बहुत काम कर चुका हूँ, तो मैं रिजेक्शन से काफ़ी वाकिफ़ हूँ. बट यू हैव टू विन एट द एंड ऑफ द डे, राइट, इन एडवर्टाइजिंग. सो यू स्टार्ट द डे विद अ ब्लैंक स्लेट. बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सेल समथिंग टू समबडी. सो आई वाज अ प्रीटी थिक स्किन्ड composer by the time I came into Bollywood in 2003. बट एक चीज़ ज़रूर चेंज हुआ है. आई थिंक वो हारुकी मुराकामी का जो कोट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, विच इज़ पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल. Yes. तो मैंने क्या है कि मैं एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ना कि लोग क्या सोचेंगे आगे का, मैंने वो छोड़ ही दिया है. तो मैं किसी को कुछ सुनाता ही नहीं हूँ. मैं अपने फ़ोन पे ही रखता हूँ, मेरे नोट्स मैं अपने पास रखता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि नो वर्क एवर गोज वेस्टेड एज अ कंपोजर. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव एक्चुअली फेल्ट वेरी लिबरेटेड. क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जैसे मैंने ओरी चिरैया जो है उसका जो मुखड़ा है मैंने खाकी के लिए कंपोज किया था. Okay. हाँ, that was composed in 2002. Wow. But just that line, इतना था. It was called Suna Suna, and it was stored on my phone. तो मैं एक चीज़ मेरे स्टूडियो में मेरे जो जितने भी काम करते हैं वो एक चीज़ में एक्सपर्ट्स हैं, वो मेरे वॉइस नोट्स को बचाने में एक्सपर्ट्स हैं. और तब से मेरे वॉइस नोट्स जब बहुत अच्छी तरह से कैटलॉग हुए हैं. So it's kind of like, it's like puzzles. Songs are like that. They come together in very unique ways. So you just stay alive. You're aware of what you have to be the vessel. Your song is not that 3 minutes or that 1 hour. It's your entire, in my case, like 40 years plus those 3 minutes. 100%. It'll always be that. You're so Whatever right. I have done and heard and not heard and learned, All experience. everything will get me to that one and that point, and then I pick and choose whatever I have to and put it in the song. Same, I think, goes for all of us. Yeah. इस पे ना इसी बात पे मुझे मेरे शायर का नाम नहीं याद आ रहा. एक शायर हैं शायद अजहर समथिंग, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा नाम, मुझे माफ़ करना, पर शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो शेर ये है कि ये नहीं देखते किसकी है रियाजत कितनी. रियाजत मतलब रियाज, प्रैक्टिस. Yeah. ये नहीं देखते किसकी है रियाजत कितनी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को. True that. क्या बात, That's true. क्या बात. That's true. That's उसके true. पीछे उन 3 मिनट के पीछे Hard 13 साल का कम से मिनिमम बोल रहा हूँ मैं. किसी का 13 साल का, किसी का 3 साल का, किसी का 23 साल का, किसी का 10 साल का रियाज है. और इसीलिए जब गाने बाउंस होते हैं ना, उसके बाद वाले दिन आप क्या करते हो ना, वो बहुत मैटर करता है. हाँ, क्या करते हैं आप? रियाज. Okay. रियाज. So then, do you all miss children's song in the films? Yes. Yes, I do. definitely, I do. yes. Definitely. I do. What? I miss do. Children's Children's songs. songs. Children's songs. Lullabies. I miss children's films. I do. I do. I think the whole Basic- perspective of a हाँ, child. I really basically miss more that. than anything else, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम चिल्ड्रन सॉन्ग ही मिस करते हैं.
मैं कहीं बात कर रहा था, कल परसों की बात है, कि पहले हम टिपिकल कैरेक्टर्स के लिए गाने बनाते थे, जी अब हम सिर्फ हीरोज़ के लिए गाने बनाते हैं। खाली डिब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, आपको पता है कि ये किस टाइप का कैरेक्टर होगा, करा लो तेल मालिश, जी आपको पता होगा ये गाना कौन गा रहा होगा। आओ हमारे होटल में चाय पियो गर्मा गर्म, आपको पता है ये बंदा कौन होगा जो ये। अभी वो कैरेक्टर्स के गाने हमारे पास नहीं है। तो बच्चे एक्चुअली हमारी पिक्चर का हिस्सा होते ही नहीं है। Even women, very rarely you're coming across characters that are female who have their own mind and want to express it. Actually, Shilpa, I had a, you know, I just recently, I just hope it doesn't come across as a rant, हाँ. but I had put this out कि मतलब फीमेल पर्सपेक्टिव के जो गाने हैं वो इतने कम हो गए हैं. Kids films, I think it's a very weird question, very uncanny that you're bringing this up, because right now the only thing that I can think of is that I'm getting these fragments of my childhood quite often, thinking of my time spent with my grandmothers, and again I'm also going on a rant, but then that childlike decision making, I'm just falling back on that abhi. Like kuch bhi agar mujhe karna hai, I always feel that if I was a 5-year-old of myself, would I do it? Does this song relate to me that way? Is it that good that I will leave everything and do it? Or even if it is lucrative for me, I don't connect with it, so should I let it go? I think your childlike decision making is so important. I mean, I think the only inspiration nowadays I'm drawing is from watching films from a child's perspective, or reading a book that is from a child's perspective, like Jojo Rabbit or Anne Frank's diary. You know, you see what the children are looking at the world and what they see and how they feel. I think it's very important to bring that perspective back, even if it is not a children's film. That perspective, I think it's a very, very good question and a valid question to ask. Yes, we need the children's perspective back. Yeah. Which is your favorite children's song? I love all the songs from Masoom. Oh my मासूम तो God. यार. Incredible. या हुजूर इस कदर ना इतराइएगा. It's got तुझसे नाराज नहीं तुझसे जिंदगी. नाराज नहीं. What a song that is. दो नैना और एक कहानी. Yes, yes, yes. I mean, it's just, it's in terms of, as composers, as lyricists, as singers, we're looking for scripts like या that. सिचुएशनली Yes. बड़े नैरो हो गए हैं हम, सिचुएशनली बड़े नैरो हो गए हैं। वो सारे, जैसे आपने कहा, वो बच्चों के गाने निकल गए हैं, वो सारे त्योहार निकल गए हैं हमारी ज़िंदगी से, जो जिन पे हम कभी नाचे भी होंगे, कभी हमने घर पे वो फूल सजाते हुए या रंगोली बनाते हुए वो लगाया होगा अपनी कैसेट पे, वो कि ये गाना लगाते हैं यार। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर इनटू दैट रोमांस ओनली, जो आधे से ज़्यादा बार सच्चा भी नहीं लगता। As a composer, you'd barely get to flex your muscles because you're making 25 different love songs for the same relationship. माशूक, आशिकी, वही बन रहा है. But like for example, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, parent to child, brother sister, त्योहार. We used to make हम so कहाँ many जा रहे different हैं? kinds of love. Yes. एक गाना था, I don't know, it's not children's song, but my mom used to sing this to me when we were growing up. खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी. I think ये दो line, I think it's just that whole love for no matter what a parent goes through, but then they want that child to be happy. Sure. When you begin composing music for a film, do you have a clear vision of what you want it to sound like, or does it evolve as you start? I don't know. By the time I'm done with the song, all I can hear is the mistakes. Same. We listen to our song like, oh, this. Really? Yeah, that's all you can hear. Yeah. तनिष्क, आपके साथ हाँ, भी ऐसा होता है? बहुत सही है, क्योंकि ये पहले कान उधर ही जाता है जहाँ पे ड्रॉप हुआ गाना. Room for improvement. Yeah. Yeah. बट प्रोसेस है ना वो, इट्स लाइक मेरा तो आजकल एक और जगह भी जाता है यार। हाँ? मेरा तो वहाँ भी जाता है जब
खा हो जाता है, गा हो जाता है, मेरा उधर भी जाता है। मेरी नजर वहाँ जाती है एंड मुझे इतना बुरा लगता है कि ये तो करेक्ट कर लेते हैं, हाँ। मतलब फाइनल कॉपी के पहले ये तो कर या लेते हैं। मतलब उसमें होता क्या है, ये सारी जो हम चीज़ें करते हैं ना, या हो सारे ही मिलके, वो बहुत देर के लिए हैं और वो गलती बहुत देर तक नजर आएगी। आप जब भी गाना सुनोगे आपको लगे अरे यार ये क्यों नहीं हुआ। कौन सा गाना था जो आपको लगा जिसमें कि यार ये ऐसा होना चाहिए था? नहीं ऐसा तो नहीं मैं बता पाऊंगा, ऐसा बताऊंगा तो बहुत सारा बताना पड़ेगा। No, this is also like I talk of this hypocrisy which exists in the music scene is that आप हिंदी गा रहे हो और एंग्लिसाइज्ड वर्जन में भी गा रहे हो, या वो बड़ा क्यूट लगता है लोगों को, बहुत स्टाइलाइज लगता है। ऐसा? But then if someone sings an English song in a Desi accent, you make fun of it. And there are so many songs that are sung in a very anglicized way, and people find it nice, and I don't believe in that. I feel that if you're singing even Hindi, there are so many ways of एक urban हिंदी होती है, एक ब्रज वाली हिंदी होती है, उसको उस तरह गाना ज़रूरी है, बिकॉज वो फ्लेवर जो एक टेस्ट आता है ना, स्वाद, वो वहीं से आता है। एक पंजाबी हिंदी भी है। हाँ, वो अगर जब तक आप नहीं गाएंगे वैसे no, it's very necessary, and I think in the south they're also like I love it how they own it so well. I even जो देसी beats होते हैं वो बड़े त्योहार वगैरह तो बहुत they own the beat structure and that folk vibe of singing. I think we need to stop romanticizing that accents में गाना, English accent में गाना is not cool. मुझे काफ़ी नुक्ता सही लगना चाहिए, नुक्ता लगना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगना ज़रूरी है. Please get your pronunciation right. It's necessary. बहुत ज़रूरी है. नहीं वो रिक्वेस्ट है एक्चुअली ना. आप ये देखिए, ज़बान ऐसी चीज़ है जो आप एक नुक्ते की वजह से ना वो बदल जाती है. True. मतलब आपने खुदा कहा और खुदा कहा तो आप ये कह सकते हैं कि बम्बई की सड़कें खुद ही हुई हैं. रोड अभी खुद ही हुई है. रोड खुद ही हुई है ना बम्बई की, और जब से आया हूँ तब से खुद ही हुई है. जी बिल्कुल. अब आप किस खुदी में रहते हैं भाई? It's very necessary to. You know, that is जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि वर्ड का मीनिंग पता होना और उसका यूसेज पता होना, वो भी यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ. Yes. खुदाई में और खुदाई में कुछ फर्क है. I mean, you need to know how to pronounce that word, or at least have the because मैंने put that effort आशा to. भोसले, लता मंगेशकर, they have said in their interviews that you know they learned Urdu when they were. I learned it when I was in school. Do you think that's important for singing? It is Hindi, helping me Hindi? now. Like I said, we're all रियाज की बात है ना, we are falling back on that. अच्छा, अगर मुझे नहीं भी पता है, if I'm singing a song, इरशाद भाई is writing it, I should make that effort. इरशाद जी ये करेक्ट है, बेसिक बात ये करेक्ट है, ये सही है. बेसिक बात सिर्फ इतनी सी है कि सिंगर को या म्यूजिक डायरेक्टर को अगर डाउट है तो वो फोन करके, अगर वहाँ पे नहीं है लिरिसिस्ट, तो पूछ ले कि ये भाई ये लफ्ज़ एक लिखा है आपने रिवाज, ये रिवाज है कि रिवाज है? दोनों अलग हैं. कई बार इस तरह से इससे चीज़ें चली जाती हैं मास्टरिंग में जो एक्चुअल में सही नहीं होती हैं. तलफ़्फ़ुज़ जिनका सही नहीं, प्रोनाउंसिएशन, यानी तलफ़्फ़ुज़ का मतलब प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं होती, उसकी वजह से आपको भी थोड़ा ये लगता है कि यार इतनी मेहनत की थी इस गाने पे, यहाँ पे आके जैसे आपने बहुत अच्छा खाना बनाया हो और उसमें ज़रा सी किरकिरी आ जाए तो कैसा आपको फील आता है? I still remember we finished recording तेरे हवाले. I went back to change one word because it's not जिस्म का, it's जिस्म का. Okay. तो अगर मैं जिस्म का नहीं बोलूँगी तो वो गलत हो जाएगा. I can't say जिस्म का just because वो metering. Now I love that song. Amitabh and Preetham both were like, no, please correct it. That's what I'm talking That about. matters, the small. The small thing that matters. So I am sure इरशाद जी would be like, आपको जितने corrections करने हैं बताइए और करिए, ताकि जो final master में जाए वो करेक्ट. he will make that effort. I'm sure he will. Yeah. क्योंकि लफ्ज़ एक सिंगर के लिए ना
दो चीज़ों का हक अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो धुन का, जो कि वो करते हैं, धुन का हक अदा करते हैं, जो धुन बनी होती है उसको गाते हैं और उसको एनहांस करने की अपने तरीके से, जैसे आपने कहा, अपनापन डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर सिंगर, मैं ऐसा नहीं कहता सारे, बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो लफ्ज़ों का हक अदा नहीं करते। और गलती वहीं पे होती है, जैसे मैंने कहा गलती, ये गलती है, गलती नहीं है। Gh. जब हम लफ्ज़ों का हक अदा नहीं करते, वो ज़रूरी है, उससे चीज़ें और बेटर होंगी और अच्छी होंगी, बस इतनी सी बात है, मुझे तो ऐसा लगता है। तनिष, या ऑब्वियसली मतलब मैं आपको बताया ना, मुझे डायरेक्शन मिलता है ना, तो उसी प्रोसेस में मैं समझ लेता हूँ। वो एक मे बी इतना साल मैंने काम किया है सबके अंडर में, तो मुझे ना वो एक समझ आ गई है कि ये डायरेक्टर क्या बताना चाह रहे हैं, उनको क्या फील चाहिए, कैसा है। एंड इरशाद भाई के साथ काम करके मुझे, मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ना कोई डायरेक्टर का जब गाना सुनाता था, मैं खुद ही लिख के सुना देता था। एंड उसके बाद जब मैं लिरिक्स कोई आके लिखता था ना, तो उनको वो लिरिक्स पसंद ही नहीं आते, वो दे गो बैक टू द ओल्ड डेमो वर्ड्स। और मैं उनको समझाता था, सर मैं लिरिक्स राइटर नहीं हूँ, ये मैंने आपको ट्यून समझाने के लिए किया है। बट वो लोग उसमें ही रहते थे, नहीं मुझे वर्ड्स ऐसे ही चाहिए। तो वो चीज़ में मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो वो ये साल से क्या हुआ कि जब इरशाद भाई से मैंने काम किया, तो मैंने ना वो डायरेक्टर को सीधा बोल देता हूँ, या गाना जब भेजता हूँ तो लाला करके भेजता हूँ, मैं उनको फोनेटिक्स देता ही नहीं, मैं उनको ट्यून सुना देता हूँ, और अगर उनको अप्रूव करते हैं फिर मैं जाके बैठता हूँ। सो देन वर्ड्स की बात हो रही है, तो क्या टू डिफरेंट गाने के सेम हुक्स हो सकते हैं? कैन टू डिफरेंट सॉन्ग्स हैव सिमिलर हुक्स? Of course, if the course. context is different, Yeah. still works. Have you used that in one of your songs? I think there's a lot of overlaps of lyrics. बहुत होते हैं ये, जैसे मैंने जीले ज़रा बनाया तलाश के लिए, but very prominent line from a song from Life in a Metro is तू जीले ज़रा. So there's always an overlap, you know. There's something or the other that always comes up. Context की बात होती है, और दूसरी बात ये भी कि आप कहना क्या चाहते हो. You know, so you frame your words according to that. Now again, this is the other thing that happens a lot of the times, is that composer को compose करते समय कभी कभी hooks एक hook word आ जाता है, और वो hook word जो है वो गले का फंदा भी बन सकता है. Exactly. And मैं सीख चुका हूँ over time that if we are a team, not a single word of mine needs to stay. सब निकल सकते हैं, because I don't have the emotional vocabulary in that language. मेरी हिंदी ना उर्दू उतनी अच्छी है कि मैं वो काम कर सकूं. For example, best example of that I've experienced in my life is चिरैया. Yeah. मैं चिरैया इस जन्म में नहीं लिख सकता, वो सिर्फ स्वानंद लिख सकता है. तो वो काम मेरा काम ही नहीं है. So the best thing you can do is to trust your partner implicitly, and it is a partnership. It's 50-50 down the middle, music and lyrics. So you have to be able to surrender to the process and enjoy it. दूसरी बात क्या है कि मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं दो चीज़ें जितना हो सके मैं उतना ट्राई करता हूँ कि मैं ये मेंटेन करूँ. पहले तो है कि मैं लिरिक्स जो है या तो देवनागरी में मंगवाता हूँ, या मैं वॉइस नोट मंगाता हूँ, जहाँ पे लिरिसिस्ट जो है वो हिंदी लिखते नहीं, वो उर्दू लिखते हैं. जैसे जावेद साहब उर्दू लिखते हैं, तो मैं उनसे वॉइस नोट मंगा लेता हूँ ताकि मैं सिंगर को सुना सकूँ कि ये है, मतलब दिस इज़ द प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ ये है, आप ये इसको मेंटेन कीजिएगा, इसको बरकरार रखिएगा. नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि all your good work will get washed away with one mispronunciation. Right. True that. Okay. So that's the first thing. सेकेंड थिंग ये है कि मैं जितना हो सके ये ट्राई करता हूँ कि जो सिंगर आए हैं उनको मैं ये गारंटी दूँ कि इफ़ यू हैव संग वेल, इट्स योर सॉन्ग. मेरिट के बेसिस पे हम जितना हो सके उतना काम करें. हम ये ना करें कि एक सारे जो सिंगर्स हैं, एक बंच, वो उनको ऐसे ये फीलिंग आने लगे कि वो स्क्रैच सिंगर्स ही हैं और वो ज़िंदगी भर स्क्रैच सिंगर्स रहेंगे. ये जो है ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो 10-15 साल से गा रहे हैं और वो अब थक चुके हैं.
क्योंकि वो आ रहे हैं और गा रहे हैं और किसी का फाइनल हो जाता है जब सबको स्टूडियो में पता है कि उन्होंने एक्चुअली बेहतरीन गाया है। और ये बात एक्चुअली बहुत जाहिर हो जाता है जब सिंगर किसी गाने को अच्छे तरह से गाते हैं, वो गाना उनका हो जाता है। करेक्ट। इट्स अनडिनाएबल और हम सब जानते हैं, वो हम इमीडिएटली जानते हैं, रूम में ये बात फैल जाती है कि नहीं ये है। तो फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द ओनली थिंग्स दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ डूइंग इन लैला में लैला व्हेन वी रिक्रिएटेड इट फॉर रईस was that Pavni Pandey was the final choice of singing the song, because when Pavni sang the song, that was it. We knew it. I mean, me and Rahul, we sat, we heard it, and I told Rahul, yaar, जरूरत नहीं है और की khatam. Let's lock this. So we went to the producers with that niyat कि ये इसको lock किया जाए please. And until we don't put our foot down, there's no way the singers are going to progress also. So that is something that I think we have to work on, you know, because I think what's happening is बहुत singers का ज़मीर टूट रहा है ये process में, घिसाई में, you know. Like Shilpa said, she lost 8 songs last year. This year. This year. But then that's what I, even when we started off, there is always a fear when I go into recording a song. And the fear is, will I reach that point where this song is something that becomes one with me? Till that doesn't happen, that's a fear. And once you reach that point, sometimes you're driving back home and you're like, अब जो हो गाने का पता नहीं, but मेरे को अच्छा I had a great time singing that, and that was me. That was me. इशाद जी, आप रिकमेंड करते हैं सिंगर्स को? मैं तो यार, मुझे लगता है ये लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं सिंगर्स के बारे में। मैं तो सुनना ही अच्छा लगता है, मुझे रिकमेंडेशन तो मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, कभी कभार बात होती है, बातें होती हैं, पर वो बातें मैं ऐसे नहीं करता कि आप इससे गवाओ। एक होता है सजेशन देना, एक होता है कि एक बात ऐसे आप पास करते हैं, ताकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे नाम या बहुत सारे लोग दिमाग में नहीं आते किसी पर्टिकुलर डिस्कशन के दौरान। तो आप सोचते हो कि यार ये ऑप्शन भी हमारे पास 2-3 हैं, हमें यहाँ देखना चाहिए, या मुझे लगता है कि ये सिंगर पर्टिकुलर अच्छा निभा सकता है या गा सकता है। ऑफ कोर्स, मतलब वो बात होती है। और जो मैं बात कहना चाह रहा था कि इन्होंने जैसे कहा, एक 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ज़िंदगी में, एक ज़िद और एक फेथ। बिना जिद के आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। जी, True. आपको कुछ और आर्टिस्ट बनाता ही नहीं है आपकी जिद के अलावा। जी, और उस आर्टिस्ट से उसका बेस्ट काम सिर्फ फेथ निकलवा सकता है। जी, जिस कलाकार पे, मैं गानों की बात कर रहा हूँ, एक डायरेक्टर ने फेथ किया, एक म्यूजिक डायरेक्टर ने फेथ किया किसी सिंगर पे, या एक डायरेक्टर ने फेथ किया किसी म्यूजिक डायरेक्टर पे, और उसको बोला कि सिचुएशन ये है यार, और तुमने गाना बनाना है और तुमने ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर नहीं बनाओगे तो मैं उठ के अपना झोला उठाऊंगा और किसी दूसरे के पास चला जाऊंगा। जी, तो आप यकीन मानो, वो उसमें अपने आप को झोंक देगा। वो जी, उसको प्रॉब्लम नहीं है 2, 4, 5, 10 बार गाने में या 2, 4, 5 वर्जन बनाने में, उसको दिक्कत नहीं है। पर उसको यकीन अगर आ गया क्योंकि ये मेरा गाना है, फिर वो देखिए आप कहाँ लेके जाता है। एक होता है अच्छा आप गाना बनाइए फिर देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, फिर तो कुछ देखने को है ही नहीं। यू नो, आपने फेथ तो पहले ही ले लिया उससे। एक एग्ज़ाम की तलवार तो आपने पहले ही लटका दी उसके गले पे, वो कितना भी एक्सपीरियंस्ड है या कितना भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बार बार एक ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, उसी क्लास में सब compete कर रहे हैं, उसी क्लास में सबको फर्स्ट आना होता है, उसी क्लास में फिर से दाखिल हो जाना होता है। So then, जो आप, मैं I'm staying with the same topic which I like to call as the politics of Bollywood music. कि singer, composer ने गाना बनाया, various singer came and recorded, and then like Shilpa said कि she put so much hard work and effort in the song, and बाद में पता No, लगता है but कि hard work necessarily doesn't mean that. but singers get replaced. That's what I'm coming to.
that's a different thing, but that just doesn't mean that आपने मेहनत किया है तो आपको मिलना ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है. Yeah, it's not. ये that is not right also. Yeah. It's just हाँ, अरे I have put hard work, I sang it for 12 hours, I sang it. That doesn't mean that like I said, till that point is not reached where the song, for example, composition wise, for Ram or Tanishq is like, okay, that point is not reached where the composition is like is working. Or Irshad ji when he's writing, for me, for all of us, if that point is not reached, आप 1 मिनट का मेहनत करो या 10 साल का मेहनत करो, it doesn't matter. हमें खुद को पता चल जाता You know, है कि you know it हमें yourself also. हाँ, Yeah, कि हम yeah. पहुंच गए हैं कि ये राइट नोट हिट हो गया है. Yeah. कई बार ऐसा फोन करके पूछते भी है ना, अरे गाना हो गया इरशाद, हो गया, मतलब कुछ लिखा, कुछ तो लिखा है पर अभी गाना नहीं लिखा गया. True. यू नो, तो आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाता है कि मैं वो टच कर गया जो मैं टच करना चाहता था. See, the thing is, it's like cooking. You can Yeah, I was coming to, yeah. एक दाल इतने वक्त तक ही आप उसको पका सकते हो, और जब वो पक गया है, everybody should be able to recognize कि दाल पक चुका है. Now it's done. Right. That is very important as a team to realize कि this is the perfect point. And we can't cook it for 3 more days. Right. It's good. you know. I mean, you should eat together. That also Yeah. helps. But that's the thing. You're so eating right. together helps a You are lot. so right, because the teams don't eat together. See, that's the big difference. I've always felt this, that when you're working as one lyricist and one composer on a film, you're eating together. Together. Right. That's what's happening. I think the best friendships also last longer if you eat well together. Yeah. So then, eating पे बात आई है, तो then were there really times where you really did have to starve to pursue your journey? Like क्या भूखे पेट काम होता है? भूखे पेट ही गाना होता है. आप भर पेट आप गाना नहीं गा सकते, सांस नहीं आती है. अच्छा, this is literally yeah, because when I'm singing, I mean, then I 2 things, I don't feel like eating and I don't think of eating, because I know that if something is in my stomach, I can't, टेक्निकल बात है, वो सांस नहीं आएगी. भर पेट आप नहीं गा सकते हो. तो मतलब you have to starve yourself. Not starve yourself, but you don't like have a big meal and then go and sing. It's not. But once the song is done, then I need to have like a whole table of food. Then you're super hungry. So technically, but if you're talking about scarcity, yeah, there should be some sort of scarcity in your life. It could be maybe of a home, of a car, or some void has to be in your life. You need to find that void to fill. Artists are people who look for that void. So if you're completely full, you can't do art. तनिष्क, आपने कभी मैंने तो इतना सोचा भी नहीं गाना बनाने के टाइम में. तो मेरे But it's लिए nice, yeah. हाँ, It's बट good मैं work. अभी सब सोच रहा हूँ कि अरे ये भी हो सकता है. ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं खाना ही नहीं खाया और प्रोड्यूस किए ही जा रहा हूँ. Exactly. मेरे लिए क्या ना, एक वाइब होता है, वो वाइब टूटता है तो फिर मेरा काम थोड़ा सा होता है. इसलिए मैं कभी वैसे नहीं सोचता हूँ कि खाना खा के काम करना चाहिए कि नहीं खा के. कभी मैं रात को भी काम करता हूँ, जब भूख लगती है, खाना होता नहीं है, तो आई डोंट नो दिस प्रोसेस. बट ये मैं फील कर सकता हूँ कि जब एक वाइब में बंदा काम कर रहा है तो उस वाइब को टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें सब आ रहे हैं, यू नो, सब एनर्जीज आ रहे हैं, ट्यून्स आ रहे हैं. वो एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है. दिमाग जो है ना, एक प्लेटफॉर्म की तरह है, और क्या है ना, एयरक्राफ्ट लैंड करने के लिए जगह चाहिए, तो माइंड हैज़ टू बी ब्लैंक, नो फूड, नो नथिंग, जस्ट दैट थिंग. तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जीज आ जाता है. तो बस मेरे लिए वही है, खाना खा के करो, नहीं खा के करो, डजंट मैटर फॉर मी. विशाल जी, आपने मुझे यार ऐसा लगता है कि आप जिसको कहते हो ना कि मैं उस माहौल को या उस विचार को ढूंढ रहा हूँ, हम सब ना रबर की गेंद की तरह हैं. हमें कोई चीज़ उछालती है, हमारा आर्ट ऊपर उछालता है. अब उस दौरान आप उस उछाल को एंजॉय करना चाहते हो या फूड को एंजॉय करना चाहते हो, चूज़ आपको करना है. जब आप थॉट में हो, कोई क्रिएटिव थॉट में हो, आप कुछ गा रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, लिख रहे हो, तो आप वहाँ नहीं हो जहाँ बैठ के, वहाँ मतलब मैं फिजिकल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेंटली वहाँ नहीं हो जहाँ बैठ के खाना खाया जा सके. True. आप किसी और ऑर्बिट में हो, किसी और जगह पे हो, वहाँ सिर्फ वही काम हो सकता है. जैसा तनिष्क ने कहा कि
एक जोन में हूँ मैं, और एक वो एरोड्रम पे एक उतरना है जहाज को, तो उसको खाली रखा जाए ताकि वो उतर जाए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। People who follow John Mayer, like he's really like a fun person to listen to, and he says the only thing that is stopping you from being good and getting to a great thought for an idea for a song or anything is dinner. क्योंकि आप काम करते हो and then suddenly by 5-6 you are at a space where you're hitting that sweet notes. Yeah. Okay. Now that dinner doesn't only point at food. That dinner means that you have to get ready, you have to drive somewhere, you have to do a red carpet, you have to do small talk, and you have to be fake with some people that you don't want to talk to, and do a victory run. That whole thing is keeping you away from making a good song. So now you have to choose. Which way you have to go? Exactly. So that whole dinner prospect is standing between you and that song that can be. So you need to choose that. I've always related making music to deep sea diving. So you're diving for pearls, and कभी-कभी आपको pearl मिल जाता है, कभी-कभी आपको pearl नहीं मिलता, लेकिन आपका कर्म ये है कि आपको कूदना है पानी में. तो that's my job. तो मैं I have a do not disturb board, और that board is very sacred. कोई मेरा दरवाज़ा खटखटाता नहीं है, टच नहीं करता है जैसे इस बंदे ने अभी किया. और हाँ, मैं जितना हो सके मैं करता हूँ अपना काम, बट it's down to a very simple principle. Don't worry about the results. Don't sweat. For example, writer's block जो चीज़ है मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ख़राब गाने कंपोज किए हैं. जिस दिन अच्छे गाने नहीं बनते हैं, बहुत ख़राब गाने बनते हैं, लेकिन आपको उनको भी एक्सेप्ट करना होता है क्योंकि इट्स अ प्रोसेस. तो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. आप don't beat yourself up. You all venture in non-film songs as well. Why in the non-film space we hear so many love or sad love songs? Why we don't hear songs like about situationships, about having fun, about holidaying, about going somewhere else? नहीं, देखिए इसका एक्चुअली आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आई जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ऑफ माय ओन जर्नी. जब मैंने शान के साथ तन्हा दिल बनाया था, तो हमको ये गारंटी था, बिकॉज नोबडी लाइक द सॉन्ग, बाय द वे, म्यूजिक कंपनी, nobody like. They wanted a dance song, they wanted typical, the same thing, love song, dance song, नाच गाने वाला गाना होना चाहिए, ये वो. मेरा ये बिलीव था कि जब तक हम लोगों के दिल को छुएंगे नहीं, आर्टिस्ट का कुछ नहीं होगा. तो तन्हा दिल जो है वो लिटरली शान और मेरी कहानी है कि हम दोनों जो हैं, हमारे सारे दोस्त देश छोड़ के जा रहे थे, हम दोनों यहाँ पे थे अकेले एक दूसरे के सहारे पे. और आई ऑल्सो फेल्ट कि मुसाफिर हूँ यारों जैसे गाने नहीं बन रहे हैं, जर्नी वाले गाने. और इंडिया जो है जर्नी वाली कंट्री है, माइग्रेशन वाली कंट्री है. लोग हमेशा एक उम्र के बाद बड़े शहरों में आते हैं, या कहीं ना कहीं यू मूव अ लॉट इन इंडिया, तो वी डोंट हैव सॉन्ग्स दैट डिस्क्राइब दैट जर्नी ऑल्सो. तो जब हमने वो गाना बनाया, बहुत मुश्किल से वो अप्रूव हुआ एज द फर्स्ट सॉन्ग, एज द फर्स्ट सिंगल. एल्बम का नाम तन्हा दिल रखा गया. थैंक यू टू अतुल चरामनी फॉर बैकिंग अस ऑन दैट. लेकिन हमको ये गारंटी थी कि वो टीवी पे आएगा तो लोग देखेंगे और सैम्पलिंग ऐसे हो जाएगा. आज वो गारंटी बिल्कुल नहीं है. आज जो है आप गाना सबसे अच्छा बनाओ, लेकिन आपको प्रमोशनल बजट जो है तगड़ा रखना पड़ेगा. नॉन फिल्म गानों को प्रमोट करने के लिए यू नीड वेरी वेरी डीप पॉकेट्स. तो वो जो बात है दैट इमीडिएटली कैंसल्स आउट एनी काइंड ऑफ आर्टिस्टिक सिंसेरिटी, बिकॉज the minute people who are going to invest in you are involved, they are going to demand a quote unquote more commercial approach to a song. So there are fantastic songs out there made by superb independent artists that nobody's heard. कोई सुन नहीं रहा है. एकदम सही. बिकॉज मेरे लिए तो मैं अपने एक्सपीरियंस दे सकता हूँ कि मुझे कोई भी गाना मिलता है तो या तो रोमांटिक सॉन्ग होता है या तो सेलिब्रेशन सॉन्ग होता है. बाकी जो है या तो पिक्चर में कोई सिचुएशन में चला जाता है जो कभी प्रमोट ही नहीं होता है, गाना खो ही जाता है. वैसा
तो ये ब्रीफ मुझे जो मिलता है हम लोग करते हैं। और ऑनेस्टली अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो 80s 90s में गाने जो एक जॉनर आता था वो इट्स गोइंग टू कम बैक दिस ईयर, बिकॉज इतने सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आए हैं अभी एंड वो लोग का कोई बाउंड्रीज नहीं है। वो लोग जो वो चाहते हैं, जो गुजर रहे हैं वो लिखते हैं एंड पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टू इट। तो वो चीज़ अभी बढ़ रही है, लेकिन मैं करने जाऊंगा तो एक्सेप्ट नहीं होने वाला फिल्म में, कभी भी नहीं। तो ऐसे मैंने इतने सारे गाने बनाए। मैं आपको बताऊं, मैं कलकत्ता में ना मेरा एक बैंड था, तो रूपांतर बोल के, मैं उसमें हम लोग जीवनमुखी बोलते हैं। जीवनमुखी मतलब रियल लाइफ की जो भी चीज़ें होती है ना, हम लोग वो टॉपिक लेके गाना बनाते थे। अपना स्ट्रेस हुआ या ब्रेकअप हुआ तो उसको हम लोग अपने तरीके से लिख के बनाते थे, जो लोग रिलेट करते थे। वो मुझे बॉम्बे में नहीं मिलता है, इसलिए मैं कोई गाने के साथ ना कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ लिरिकली, क्योंकि मुझे लगता है इसमें वही बात हो रही है, वो रोमांस का ही है। तो मुझे ये चीज़ अभी मैं ढूंढता हूँ एंड मुझे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में वो दिखता है कि वो हो रहा है आस्ते आस्ते एंड पीपल आर हेल्पिंग। स्पॉटिफाई हेल्प कर रहे हैं। अब कितने आर्टिस्ट देखो, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, नए वॉइसेस आ रहे हैं, तो अच्छी चीज़ आने हो रहा है। Yeah, it's going there slowly. No, I completely feel that the indie artists are far more resilient. I do feel that, and I think pollution पे गाना बनना चाहिए, and yeah, बच्चों के लिए I think Like, you We know, should, we songs on relationships, there are so many different kinds of colors to relationships. There's so much to be said in the world if you allow songwriters, lyricists and composers to express different emotions. And the problem I think today is it's very easy to put the blame on the artists, but I genuinely, like he's saying, like she's saying, we have on our playlists we have so many independent artists who are making such special different music. होता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना, जब आप इंडिपेंडेंट जो आर्टिस्ट होते हैं उनका डायरेक्ट मुकाबला फिल्मी म्यूज़िक के साथ हो जाता है। अब 4 लोगों के सामने एक आदमी जनरली थोड़ा सा कम पड़ जाता है। यू नो 5 गाने, और 5 गाने भी इतने भारी भरकम, और उनका प्रमोशन भी इतना ज़्यादा कि आप सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। और फिर एक बेचारा एक होता है जो गिटार लेके बैठा होता है, उसको यार सुन लो गाना, मैं भी ठीक ही लिखता हूँ, ठीक ही गाता हूँ, एक ऐसा होता है। अब उसको लगता है कि क्योंकि सब लोग रोमांटिक गाने ही सुन रहे हैं तो मुझे भी मेरी कहानी ही सुनानी पड़ेगी, तो वो कहता है मेरी कहानी सुनो, राइट। लेकिन आप compete नहीं कर सकते। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट खासकर आर्टिस्ट को, कि आप फिल्मों के साथ compete नहीं कर सकते जी, और आपको करना भी नहीं है। yes. यू नो आप ईमानदारी से जो आप कहना चाहते हैं, जो आपकी बात है, अपनी बात है, वो कहिए, अपने तरीके से कहिए। आपको सुनने वाले लोग हैं, आज 10 हैं, कल 100 हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद 1000 हो जाएंगे। ऐसे ही तो होता है सबके साथ, कोई तो और तरीका ही नहीं है। मगर क्या आर देयर टॉपिक्स या थीम जो आपको पसंद हैं, जो आप शायद अपने लिए लिखते हैं? नहीं, अपने लिए मैं जो लिखता हूँ, अपने लिए मैं उस तरह की नज़में लिख लेता हूँ जो, या जिस तरह की कि अच्छा ये किताब के लिए ठीक है यार, किताब में अच्छी लगेगी, है ना। माएँ बेरियाँ जंगल की, हर एक जंगल कहाँ जानता है बेरियों के महत्व को। बेरियाँ होना चाहती हैं गांव की पगडंडियों की, तने पर पटके जाएं बस्ते, मैली किताबों के थैले, उछलें छोटे छोटे पत्थर, मई और जून की टिकी हवा में बेरियां देंगी बेर, बेरों से भी ज़्यादा बचपन की यादें, स्मृतियों के ढेर। पत्नियां बेरियां पिछवाड़े की, हर घर के मालिकों का जितना हक होता है बेरियों पर, उतना हक कभी नहीं रखती अपना घर पर। फिर भी फैलाती हैं जड़ें घर की नींव तक, कभी कभी हवा के झोंके से गिराती हैं बेर। सभी घर वालों को कहाँ पसंद आते हैं पिछवाड़े की बेरी के बेर। क्या बात। बहने बेरियां आंगन की, बहने बेरियां आंगन की, आसपास बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बेरियों के चारों ओर चाहिए बाड़, जब वो हो जाती हैं दीवारों से ऊंची तो झुक जाती हैं किसी दूसरे आंगन में। बेर भी हो जाते हैं उसी आंगन के, तना भी हो जाता है, जड़ें रह जाती हैं केवल इस आंगन में। क्या बात है, क्या बात।
अब मुझे बताओ कि ये जो मैं थॉट है अगर मैं किसी गाने में लाना चाहूँ तो इज देयर एनी वे कि मैं इस तरीके को नहीं, ये तो कर ही लेंगे, वो तो हम करेंगे ही, बट यू नो एज आई एम सेइंग, अगर आप ध्यान में ये रखेंगे कि मुझे फिल्मों के साथ compete नहीं करना, ये मेरा अलग जॉनर है यार, आप एक बार सुनो आपको मजा आएगा या नहीं आएगा, दो ही चीजें होंगी ना, अगर आया तो दोबारा आ जाना, बार बार आएंगे। राइट तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं ऐसा समझता हूँ, पर इंडिपेंडेंट जो आर्टिस्ट हैं उनके पास A to Z हर टॉपिक पे बात करने का एक खुलापन है, एक, लेकिन ये है कि वो बात होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ स्लोगन, इट शुड बी योर थॉट, इट शुड बी योर फील मोर देन थॉट, नॉट अ स्लोगन। You know, artists are very smart, creatures in a way that if someone has had a background where they've learned something, or there is a background of or inclination of something, even when you're doing popular work ना, वो seep in कर जाता है, रिफ्लेक्ट करेगा। and artists do it very smartly. आपको पता भी नहीं चल रहा है, but वो है भी उसमें। Whatever ghazal I've learnt, वो मैं डाल ही दूंगी कहीं पर। I know that there are a lot of these pushbacks for us. There's no space for anything else, another thought to be put out. I know there's not much backing if it's not a popular song or something. But in the popular song, I will make sure that I will put something that, oh, अच्छा, this is There's my ये मेरी Stamp है। एक जो मैंने सीखा हुआ है, जहाँ पर वो कीड़ा है मुझे निकालने का, वो मैं निकाल लूँगी। So we all find those places, even in hardcore popular tracks, we will put that in, which actually, because if you're doing the same thing that our ancestors did, then what's the difference? तब तो हमको गाना बजाना लिखना सब छोड़ देना चाहिए, सब तो अच्छा हो चुका है पहले, हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम वो सब सुन करके हम एक अपना स्टाइल बना के इसमें नए में डाल रहे हैं, हमारे बाद ये चलता ही रहेगा, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू learn all of this. From the past. Love has been said in so many different ways. How newly can you say it? So every generation has a way of saying it. So every generation, I won't say it is easy for them. They have their own set of problems. We also had our set of problems. They'll have new problems. So then it comes to you कि आप उसको intelligently कैसे अपनी तरह से कह रहे हैं। तो प्यार सबको ही हो रहा है, but वो अपनी तरह से कहना ज़रूरी है। अब मुझे रांझना पिक्चर का एक, मैं तुम्हारी बात को ही बढ़ा रहा हूँ, रांझना फिल्म, अब उसमें मैं बड़ा ब्रैग करता हूँ कि यार मैंने एक लाइन लिखी है, भले किसी ने सुनी हो ना सुनी हो, पर मुझे लगता है सोशलिज्म पे उससे बड़ी स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती। वो लाइन ये है, मैं उन लोगों का गीत जो गीत नहीं सुनते। अब मजदूरों को, किसानों को, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके पास कहाँ टाइम है यार कि वो बैठ के सुने आज किसका सिंगल निकला है, कौन सी पिक्चर रिलीज होने वाली है। मैं उन लोगों का गीत हूँ। True that. True that. गाना मनशुद्धि में। नहीं नहीं, ये ऐसे ना देखो, Okay. ऐसे ना देखो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। जी। तो उसमें ये लाइन थी, मैं उन लोगों का गीत जो गीत नहीं सुनते। तो मैं ब्रैग भी करता हूँ इस बारे में। Tanishq use a lot of music samples from the libraries, which are also accessible to other musicians from across the world. And how often has that happened where you used beats of a song that sort of sounds similar to another famous song, like what happened in the case of A.P. Dhillon? देखिए सैम्पल्स तो सालों से यूज़ हो रहे हैं, मतलब 90s से आई थिंक दे हैव सीडीज़ जो है आकाई के आते थे, जहाँ पे बीट्स बने हुए हैं, कॉर्ड्स बने हुए हैं, इंस्पिरेशन के लिए होते थे, वो एक सीड चाहिए होता है बनाने के लिए, तो उसके लिए। अभी जो हो गया वो लोग वर्ड्स और फोक लेके सैम्पल कर रहे हैं, उसको गाने पे एज अ ड्रॉप यूज़ कर। जैसे गुड न्यूज़ में मैंने ना एक गाना किया था जीजा, जो एक गिद्दा का सैम्पल सीडी आया था, तो मैंने उसको खरीदा था, उसमें सब गिद्दे हैं 10-12, वो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 3-4 years बैक। आप बिलीव नहीं करोगे वो गिद्दे अभी टुमारोलैंड में बज रहे हैं या सनबर्न में बज रहे हैं, कोई एफ्रो हाउस बना रहा है। तो सैम्पल तो हर तरीके से यूज़ हो रहा है, आप कैसे यूज़ करो वो आपके ऊपर है। आप उसको चॉप कर रहे हो कि उसको ट्यून चेंज कर दे रहे हो,
वो आपके ऊपर है, वो गाने के वाइब के हिसाब से जाना चाहिए. लाइक वन सॉन्ग आई लाइक द मोस्ट, आई लाइक द प्रोडक्शन ऑल्सो इज दिस सॉन्ग कॉल्ड दैट वन, सावन का जो एक गाना था ना, वेयर दे यूज्ड राजस्थानी का एक ड्रॉप था, बॉम्ब डिगी. Bomb diggy diggy. Bomb diggy diggy. तो जब Yeah, बॉम्ब डिगी आया, yeah. पूरा गाना एक तरफ है, जब ड्रॉप आता है ना लोग बोलते ओ वो ये क्या साउंड आ गया. वो एक सैम्पल है, एक राजस्थानी सैम्पल को एक बंगाली सैम्पल को मिला के बना हुआ है, तो वो गाने के वाइब के साथ जाता है. और वही सेम सैम्पल ना इना ने यूज़ किया है उसके गाने पे, बट इट्स इन अ ट्रॉपिकल हाउस में, तो वो उस गाने पे भी जाता है. तो लोग कैसे यूज़ करें उसके ऊपर. The hip hop industry started a system called beats. So, and by beats they mean an entire backing track. यस. So that hip hop producer started selling their beats. So basically, someone like AP Dhillon has bought an entire beat from a producer. But what he's not done is he's not bought it exclusively. तो वो बंदा जो है he's selling it in 3 or 4 different places. एग्जैक्टली. Now these are the, every industry keeps evolving. My only reservation and my only hope is that in the fair usage everybody gets paid properly. True. यस. You know, True that. that's the only thing that's my concern. If somebody's getting gypped, there's a problem. हाँ. Yeah. But otherwise, I mean, a sample is a sample, and it's been happening since it started with hip hop, and it's a cultural thing. I don't think there's anything wrong with it. Yeah. Every generation has their own style, style, their own yeah. sound, their Yeah. own vibe. So it's cool. It's perfectly okay. The issues are of niyat. नियत आपकी क्या है, वो नियत अगर आपकी साफ है तो यार करो, प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर आपका नियत ये है कि आप किसी और का काम को अपना काम बता के निकाल रहे हो तो वो अलग That's बात wrong. है. Then That's then wrong. it's wrong. That is wrong. Today, when there's so much of music which is uploaded on internet every day, often a good song gets lost because every day the new songs are coming. And do you all look for reaction videos? जो कि एक नया marketing tool है. People, you know, we've seen Pakistani reacting to Indian songs, Australians reacting to Indian songs, South African reacting to Indian songs. Do you all look for reaction videos and do you give importance to them? I get sent reaction videos by other people. मेरे दोस्त भेजते हैं कि see check out this reaction video. मैं ढूंढता नहीं हूँ. The other thing is, you know your song is successful when you receive thousands of covers of the song. I enjoy every one of them. It's a beautiful feeling because actually it's very surreal because once the song is in the public domain, it doesn't even feel like your song. It's not ours anymore. Yeah. It's theirs. It's theirs, everyone's. it's It's everyone's. everyone's, you know. Yeah. I got the maximum reaction videos to the Coke Studio episode I had done Okay. with Bhavri Devi, and we had done this, Oh this my folk God, song that called song was a Katte. force. Yeah, Katte was quite something. Yeah. So I got a lot of reaction videos for Katte because it's unusual, and also the thing is, what was special about that? It was entirely live on the floor. मेरा भी एक ऐसे ही, मतलब मैं एक खुद के लिए एक सिंगल मैंने प्लान किया था. ऐसे ही मैंने सोचा कि एक गाना बनाता हूँ फीमेल पर्सपेक्टिव से, और मैं एक गाना ऐसे ही बनाया. एंड तरुण का फिल्म हो रहा था ड्राइव, तो मैं गया तो कोई सिचुएशन था नहीं. उसने मुझे एक सिचुएशन दिया कि इसमें ना एक ज़बरदस्त डांस सॉन्ग चाहिए, ठीक है, इसमें ये है, ये करेंगे, वो शूट करेंगे, ये करेंगे. तो मेरे फ़ोन में था गाना, तो मैंने वो सर्च करा था, तो वो गाना बज गया. तो उन्होंने बोला ये गाना कैसे. दिस इज़ नॉट द जॉनर दैट यू आर लुकिंग फॉर, दिस इज़ लाइक फॉर मी. नहीं एक बार बजाओ गाना. तो मैंने बजाया, तो बोला कैन आई टेक दिस सॉन्ग एंड मुझे सुनाना है आगे. तो मैं तो दे दिया क्योंकि गाना मेरे पास था नहीं. तो मैंने बोला ठीक है आप सुना दो गाना. तो वो गाना फाइनल हो गया, गाना रिलीज़ भी हो गया. और मैं कभी देखता नहीं हूँ गाना कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है, बट आस्ते आस्ते मैं लोग मुझे ना रिएक्शन वीडियोस सेंड करना चालू कर दिया ऐसे करके. पिक्चर चली नहीं, सुपर फ्लॉप हो गई थी पिक्चर, बट वो गाना ना वायरल हो गया. ठीक है, सब डांस कर रहे हैं उसमें. मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये एक प्रोसेस कैसे हुआ. हाँ, कैसे ये गाना लोगों तक पहुँचा, ना प्रमोशन ना कुछ. वो गाना था दिस वन, ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने. तो मुझे समझ में ही नहीं आया, ये मेरा सिंगल के लिए था. तो रिएक्शन वीडियोस वही है कि गाना पहुंचना है ना, पहुंच जाता है. यू नो, वो प्रमोशन ज़रूरी, मतलब अच्छे गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Because, लोग you वो know, प्रोसेस ढूंढते रहते हैं. मैं लेबल्स के साथ काम करता हूँ ना, तो वो लोग मुझे एग्जांपल देते हैं, यू नो सजनी गाना देखो ट्रेंड कर रहा है, कैन वी मेक अ सॉन्ग लाइक दैट. ठीक है, बिकॉज वो हो रहा है. बट सजनी जब बना था
तब दूसरे लोग वो गाना सुने नहीं थे। वो जब गाना हिट हो गया तब वो कनेक्ट हुआ, गाना बहुत अच्छा था। यू गेटिंग इट? तो ऐसे गाने बहुत हैं जो प्रमोशन के वजह से नहीं होते हैं, और गाना कोई गाना ऐसे ही हो जाता है, वो एग्जाम्पल बन जाता है, चाहे वो राता लंबिया हो, चाहे बारिश हो, बोलना हो। ये सब मैं ये नहीं सोच के किया कि ये गाना रिएक्शन वीडियो बनेगा, लोग उसमें डांस करेंगे, मुझे टैग करेंगे, तो मैं उसका मैं कभी भी नहीं किया हूँ। जो गाना पहुँचना है वो पहुँच जाता है। तेरे हवाले the year it came, nobody knew that Exactly. song, nothing. I loved it. And what a beautiful song it is. I loved it. We all loved it because वही बोला ना, अपना खून दिल सब उसमें था। Okay, and again you finish the song, आप छोड़ देते वहाँ पर, वो फिर लोग अपना, but it got picked because people loved it on their own terms. So again, there's no one way to do it. No rules to it. Yeah. For our reaction videos, I only see one thing. For us, when we're performing and you sing the first line and you see people's faces, I think that reaction says it all, whether that connection is there, and you can see it in their eyes. कुछ चेहरे तो याद भी रहते हैं after many shows कि ये line गाया था, और उस आदमी का या उस लड़की का जो एक reaction था वो आपके साथ रह जाता है। So मैं नहीं देखता यार, सीरियसली नहीं देखता। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ, हम रिएक्शन ऐसे आए, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत गाना जब आया, तो इरशाद कामिल ऐसे कैसे लिख सकता है, इरशाद कामिल तो ये, अरे इरशाद कामिल हमेशा ही कबीर के दोहे थोड़े लिखेगा यार। इरशाद कामिल फिल्मों में काम कर रहा है और वो अपने लिए तो गाने लिख ही नहीं रहा, वो तो कैरेक्टर के लिए लिख रहा है। अगर कैरेक्टर गुंडा है तो गुंडे के लिए गाने लिख रहा है, अगर वो सेंट है तो वो सेंट के लिए गाने लिख रहा है, अगर किसी का दिल टूटा है तो उसके लिए गाने लिख रहा है, अगर किसी का दिल जुड़ गया है तो उसके लिए गाने लिख रहा है। वो अपने लिए कहाँ लिख रहा है? और जैसे गुंडे का गाना है, कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है, मे भी कोई और पिक्चर होती, कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है, मैं इस तरह की राइमिंग शायद ना करता। मुझे लगा यार ये पिक्चर ही गुंडे है। अब गुंडा और कैसे बोलेगा? और वो इमेज तोड़ने में एक्चुअली मजा आता है। मजा भी आता है, और मतलब आप you actually meet your own self. अच्छा ये भी पर्सनालिटी है मेरे अंदर। Right, ओह अच्छा, ये पता ही नहीं था मुझे। Okay. So एक नया so basically we go to studios to find ourselves. That's Yes. it. Yeah. और बाकी रिएक्शंस की बात, मतलब आई डोंट थिंक दे आर वेरी पर्सनलाइज, किसी भी चीज़ को लेके बहुत पर्सनल होते हैं। तो हर एक आदमी के पीओवी का पॉइंट ऑफ व्यू का रिस्पेक्ट करना चाहिए, दैट आई रिस्पेक्ट। Yeah. I have a quick rapid fire round. So, what is the standard length of a song that you like to have for your compositions? No, when the lyricist and I feel that we've said everything we have to say, that's the perfect length. Though now, right now, I mean, the music industry would like us to push. I keep saying this to people. It's so funny. I made jingles, hoping to make songs. Now I make songs that are the size of jingles. Exactly. The other way. Yeah. Tanish? नहीं सही है, ये एकदम सही है। अभी तो अपना क्या होता है कि 3 मिनट का गाना होता है, बट लोग मुझे बोलते हैं 15 सेकंड ना एक कुछ हुक हो जाए गाने जो रील पे चल जाए। तो गाना सब रील फॉर्मेट में ही होता है। यू गेटिंग इट? तो अभी गाने छोटे हो गए, और हम लोग जब गाना बनाते हैं, आपको बता रहा हूँ, हम लोग ने गाना बनाया 5.5 मिनट का, खत्म ही नहीं हो रहा है। हम लोग को लग रहा है और एक आउट्रो बना दे, मजा आ रहा है। बट लेबल्स को चाहिए कि अच्छा थोड़ा सा एक कुछ इसमें आ जाए, 15 सेकंड का 30 सेकंड, जिसमें डांस हो। मुझे ऐसा लगता है यार, मैंने ऐसा भी काम किया है कि आपने 22 मिनट का गाना लिखा है, 22 मिनट का गाना लिखा है, और जब आपने पूरा गाना लिख लिया तो आपको समझ में आया कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं या क्या चीज़ें नहीं वर्क कर रही, तो आपने चॉप करके उसको 4 मिनट का गाना बनाया। फिल्म की या गाने की लेंथ अगर एक्चुअल देखा जाए, ये टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स अगर छोड़ दिए जाएं, उतनी होती है जितनी देर तक आपको मज़ा आ रहा है। Exactly. आप 3.5 घंटे की भी पिक्चर देखते हो, मज़ा आ रहा है पिक्चर में। आप 9 मिनट का गाना भी सुनते हो, संदेश से आते हैं। बिल्कुल। 12 मिनट का मेरा पहला गाना तो से नैना was 8.5 minutes. हाँ, No one stops it. that ये इश्क है, ये इश्क कौन फाया कौन कितनी लंबी कवालियाँ चलती जा रही हैं। No one stops a song once
और आपको एग्जैक्टली आपको जब तक मज़ा आ रहा है आप सुनिए, आपको नहीं मज़ा आ रहा है तो आप 1 सेकंड में भी बंद कर सकते हैं. हाँ, Is there a time of the day when your sounds the best, like your voice sounds the best? In the night. In the night for sure. हाँ, अगर कोई बेस वाली चीज़ है खरज का तो वो सुबह सुबह once you get up. So then कौन सा गाना है that you have recorded in the morning and the one in the night? Recorded in the morning means I've started recording in the night, then till the morning. So then That I've which- done. Which? Bulya. Bulya was one song where we worked for it for almost a year and a half. Because the lines that I had at the end, they were bass. So that was working and So that you need to record in the night because it will sound in a certain way. no, the mornings when you have a bass tone happening. There are times that I've recorded with a cold Yeah. because the song has gone for a shoot. And then Preetham is like, I want that tone. But I'm Bring the cold fine. back. I'm now healthy. No, but I want that tone. Yeah. So yeah, it's a very what do you call it? कौन सा गाना था जिसके लिए? हरदम हमदम जब उसको रिकॉर्ड किया था उस वक्त मुझे आई वाज हैविंग अ कोल्ड सो एक आवाज़ अलग थी बट देन ही वांटेड दैट फॉर द फाइनल मिक्स एंड सेड आई एम नाउ हेल एंड हार्टी बट दिस विल नॉट डू सो sometimes happens. So then, what is the best place for each of you where you like to ideate? Internally, I think the bathroom. I mean, the thing is, you know, the very funny thing about people from outside of our business is they think that we live by the seaside and we're taking Exactly. walks and or we live in some very fancy studio and like, you know, we're constantly under like some sort of neon lights or something. In Tanish's case, I'm sure that's what they think. It's not Yeah. neon, but No, there's No no, neon. there's no neon. No, that's No, what. there's Yeah, no neon. it's a nice studio, but there's no neon. Yeah. And you're not working with shades on all the time. Yeah. Yeah, but that's what people think. That's how we live, but we don't actually. It's most of the times this you don't even realize where you're ideating, because when it comes, and you're focused. You know, so it can be anywhere. Sometimes it happens in the most inconvenient places. In the traffic jam, suddenly you get an Right. idea. yes. And it's a nightmare because you're trying to record your voice note and there's cars honking at the back and it's madness. So it can happen anywhere at any time. There's no Visa interview once. visa interview. Yeah. 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 Can I take a break? Come back. तो एनीथिंग और दूसरी ये भी है कि टाइम को लेके ना आपको नहीं, क्योंकि जब आना होता है टाइम के हिसाब से थोड़ी आती है कोई चीज़ नहीं। कि अभी 7 से 5 के बीच में आइडिया आने वाला है तो मैं कॉपी पेन लेके बैठ जाऊँ या हारमोनियम लेके बैठ जाऊँ, ऐसा थोड़ी नदी होता है। किनारे बैठ जाओ। हाँ, ऐसा नहीं होता। कई बार मतलब ये जो आपने बोला ना, मुझे अचानक से एक इंसिडेंट याद आ गया। मैं मतलब इधर गाड़ी पार्क की, मैं रोड क्रॉस कर रहा था और कुछ समथिंग स्ट्राइक्स हो जाती है, आदमी सोचता ऐसे ही यार अभी इसमें कर लूँ, तो मैंने चलते चलते रिकॉर्ड कर लिया। उसमें आइडिया नहीं आया, हॉर्न्स ज़्यादा आ गए, Oh. Yeah. यू नो। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो कौन सा जाती गाना था जो आप रिकॉर्ड हैं। नहीं, वो असल में आइडियाज़ होते हैं। Idea था. आइडियाज़ होते हैं, मतलब आइडिया बड़ा एक 4 वर्ड्स का भी आइडिया हो सकता है, 10 वर्ड्स का भी आइडिया हो सकता है कि इस पे गाना खड़ा हो सकता है। जी। कॉर्नर स्टोन होता है गाना वो उसका। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे तो मैं और रहमान साहब जब हम काम कर रहे थे तमाशा पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक सिचुएशन आई कि यार कुछ चलो बैठते हैं, कोई लाइन दो, कोई बात। तो मैं हमेशा ऐसी लाइन देने की कोशिश करता हूँ जो एक ना केव की तरह हो, जैसे अगर तुम साथ हो। जी। अब अगर तुम साथ हो को आप नेगेटिव भी जा सकते हो, आप पॉजिटिव भी जा सकते हो, राइट। आपको जो कहना है इट शुड बी लाइक अ हेडिंग ऑफ ए एसे और ए स्टोरी। तो ये आइडिया आता है कोई आपको कि ओके यार ये इस पे कुछ लिखा जा सकता है। एक और अभी चमकीला का ही गाना था, तो रहमान वो सिचुएशन क्रैक करनी थी, उन्होंने बोला कि लिटरली जो आपने बोला, स्टूडियो लॉक कर दिया, तू और मैं बैठे हैं आज करके ही जाएंगे, यू नो, कुछ दे दे। मैंने कहा सर तू क्या जाने, ये तो फाइन डन। अब तू क्या जाने को भी ऐसे उठ गए हम ये बोलने के बाद। अब हुआ क्या, तू क्या जाने को भी आप कहीं भी ले जाओ, यू नो, कि या तो तू जानता है कि जब
मुझे जान लेता है तो मुझे कैसा फील होता है, या तुम तक मेरी बात नहीं पहुंचती तो मुझे कैसा फील होता है. यू नो देयर शुड बी सम ग्राउंड टू दैट थॉट. to explore. हाँ, तो वो मैं आइडिया, वैसा आइडिया की बात कर रहा था मैं. I think that eureka moment जो होता है ना, it's about a concept. It is not that you hit the. Again, Archimedes had that moment कि हाँ ये concept hit हो गया है मुझे and इससे मैं वो कर लूँगा. In the same way, so this is one thing that my dad always would keep an open mind for. क्योंकि मेरा जो एक रियाज कर रही हूँ and suddenly वो एक जो गांठ है ना, क्योंकि vocally you can't show someone how to sing. Yeah. On an instrument, it's you can still show, okay, this is, you hit it lightly, you hit it hard. For that, you have to keep probably doing that same regiment, और एक ऐसा moment आता है कि आपको वो concept समझ में आ गया and you can execute it, which happens in the studio also, where you're singing it many times and people And are you like, feel connected most to the. no, there is a weight that happens, that where that right execution happens, and that wait period for your composer, lyricist, that is the faith that we both have for each other, that it will come, and that moment when it comes, then everyone's like, okay, this is it. So we look for concepts where वो जो दिमाग की गांठ खुल जाती है and वो फिर वो आता है, so it takes time.